Hello students, good morning. Today I am going to solve exercise 5.2 question number 4, okay, from NCERT book. So question number 4, it says that which terms of the AP 3, 8, 13, 18 is 78. मीन्स जो एपी दिया हुआ इस एपी का कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म है जो 78 होगा इस एपी का। मीन्स इसका हम निकालना है कौन सा टर्म, मीन्स एन फाइंड करना है, इसका कौन सा टर्म मेरा 78 आएगा। मीन्स 18 के बाद कुछ होगा, फिर उसके बाद कुछ होगा, उसके बाद कुछ होगा, मीन्स कौन सा टर्म जो है जो 78 होगा। ओके, सो सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन को। सो गिवन एपी पहले जो दिया हुआ उसको लिख लेते हैं 3, 8, 13, 18 डॉट 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 78. ओके, सो ए we have 3 and D we have A2 minus A1. So A2 we have 8 and A1 we have 3. So 8 minus 3 equal to 5. ओके, अब मेरे पास AN भी दिया हुआ, मेरे पास AN इक्वल टू कितना है 78। इस मेरे पास AN लास्ट टर्म मेरे पास कितना है 78। अब हमको फाइंड क्या करना है, मेरे पास हमको फाइंड करना N. So we know that nth term of this AP, nth term of the AP A plus N minus 1 into D. Okay, so AN we have 78, A we have 3 प्लस N we will फाइंड करेंगे हम लोग N and D we have 5. सो 78 यहाँ प्लस इधर आएगा तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में माइनस, देन N minus 1 into 5. सो 78 minus 3 equal to 75 and N minus 1, और ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड में, अब इसको कट कर दीजिए। 15 5 जा 70, 15 5 जा 75. सो N minus 1 we can write 15. So N equal to 15 plus 6 1. So N equal to 15 1 16. N मेरे पास कितना आ गया 16, तो क्या लिखेंगे हम, हेंस 16th term of this AP is 78. Okay, this is the answer. Now we solve question number 5. So question number 5 is here. Find the number of terms in each of the following AP. Means हमको क्या निकालना, N निकालना, means term निकालना. Okay, so we have AP 7 13 19 dot 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 205. Means first term we have 7 and last term we have 205. हमको निकालना है कि 200 जो 5 है वो कितना टर्म में है, वह जो 205 वो टर्म कितना है, वो कितना टर्म में 205 आएगा। ओके, मीन्स वी हैव टू फाइंड N. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले जो गिवन है उसको लिख लीजिए, गिवन A इक्वल टू 7 and AN equal to 205. Okay, so we will find D and we know that common difference equal to A2 minus A1. So we have A2 equal to 13 and A1 equal to 7. So 13 minus 7 equal to 6. So D equal to मेरे पास 6 आ गया।
ओके, अब हमको निकालना है, वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस सॉरी वी नो दैट ए एन इक्वल टू a plus n minus 1 into d. Okay, so we have an equal to 205, a equal to 7 plus n minus 1 into d equal to 6. Sorry, n minus 1 d equal to 6. So 205 minus 7 equal to n minus 1 into 6. So कितना हो जाएगा यहाँ पे 198, okay, इक्वल टू डिवाइड बाई 6 n माइनस 1. जिन इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 6 3 जा 18, देन 6 3 जा 18. So n minus 1 equal to 33. So n equal to 33 plus 1. So n equal to 34. This is the answer. ये हमको n फाइंड करना था, मीन्स 34th टर्म में मेरा क्या आएगा 205 आएगा. ओके, now we solve question number 2. So question number 2 we have series sequence 18 15 whole 1 by 2. So let us solve this question. A we have 18, a and we have minus 47, d we will find करेंगे, हम निकालेंगे. So a2 minus a1, a2 we have, we can write 15 2 is 31 means 31 by 2 minus 18 by 1. So we can write 31 by 2. Sorry, LCM of 2 and 1 is 2. So 31 minus 18 2 is 36. So D equal to minus 5 by 2. ये मेरा D आ गया. ओके, and we know that nth term of AP a plus n minus 1 into D. So an we have minus 47, a we have 18 plus n minus 1, d we have minus 5 by 2. Okay, so minus 47 minus 18 equal to n minus 1 into minus 5 by 2. Add minus minus plus. So 7 8 15 4 1 5 and 6 minus 65. और यहाँ पे माइनस है तो डिवाइड, इसको मल्टीप्लाई में कर देते हैं, माइनस 2 by 5. ये इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा. देन n माइनस 1, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा. सो 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. सो 13 2 जा 16, माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस 26 इक्वल टू 13 2 जा 26, n माइनस 1. then n we can write 26 plus 1. So n equal to 27. Answer.
समझ में आया? ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6. So question number 6 is here. Check whether minus 150 is a term of the AP 11852 dot dot dot. मीन्स बोल रहा है जो ये AP है 11852 डॉट डॉट डॉट, क्या इस AP में कोई ऐसा टर्म होगा जिसमें -150 आएगा मेरा? वो आपको चेक करना है कि कौन सा टर्म में 150 आएगा, अगर आएगा या नहीं आएगा वो चेक करना है कि -150 इस AP में आएगा या नहीं आएगा. ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो वी हैव given AP 11852. Okay, so we have A equal to 11, D equal to A2 minus A1 means 8 minus 11. So 8 minus 11 equal to -3. So D equal to -3. Okay. अब हमको फाइंड करना है AN. So we know that AN पहले हम कर लेंगे. We know that nth term of this AP A plus n minus 1 into D. हम भी जानते हैं क्या कि nth term of the AP क्या होता है, AN equal to A plus n minus 1 into D. So AN मेरे पास नहीं है कुछ, so AN equal to A 11 प्लस AN जो कौन सा टर्म, सॉरी यहाँ पे AN दिया हुआ, AN इक्वल टू -150 मीन्स लास्ट टर्म मेरा दिया हुआ -150. ओके, ये देखना है कि -150 होगा या नहीं होगा. ओके, सो AN वी हैव -150 इक्वल टू A वी हैव 11 प्लस n minus 1 into D we have -3. So -150 plus -11, ये प्लस था इधर आ गया तो -11, n minus 1 into -3. सो कितना हो जाएगा यहाँ पे 161, then divide by -3 और टू n minus 1, माइनस कट गया, देन 161/3 इधर -1 था इधर अगर क्या हो गया +1 इक्वल टू n. सो n वी कैन राइट 161 प्लस 3/3, सो 164/3 मीन्स n मेरे पास कितना आ गया, n मेरे पास आ गया 164/3. ये 3 से कट नहीं रहा है, तो जब भी टर्म जो होगा कोई भी नंबर या टर्म ना नेगेटिव में होगा ना ही फ्रैक्शन में होगा. हम बोलेंगे कि यहाँ से लेके ये जो 2 होगा ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड, फोर्थ नंबर जो होगा वो -4th नंबर होगा क्या, या 4/2 होगा क्या, या 7/5 होगा क्या. ऐसा होता है क्या? कोई टर्म कभी भी निगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होता है. तो यहाँ लिखेंगे however term cannot be फ्रैक्शन या डेसिमल. हाँ, इसे इस तरह लिख सकते हैं, जब नेगेटिव में आ गया तो लिखिएगा however term कैन नॉट बी नेगेटिव, या however term जब फ्रैक्शन में आएगा तो however term कैन नॉट बी फ्रैक्शन, या फिर डेसिमल. ओके, फ्रैक्शन के जगह पे डेसिमल भी लिख सकते हैं क्योंकि ये डेसिमल में हो जाएगा. तो ये क्या होगा, ये आपका ये टर्म नहीं होगा तो लिख देंगे therefore
150 is not term of the given AP. मीन्स -150 इज नॉट टर्म ऑफ द गिवन AP. ये क्या है? -150 जिस जो AP दिया उसका टर्म नहीं होगा. ओके, नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव फाइंड द 31th term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. Okay, so now we solve. सो हमको निकालना है 31st टर्म. ओके, और 11th टर्म मेरे पास दिया हुआ. गिवन क्या है? गिवन है 11th टर्म. 11th टर्म मेरे पास कितना है? 30 है. सो वी कैन राइट 11th टर्म a प्लस 10d इक्वल टू 38. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. अगेन जो दिया हो मेरा क्या दिया हो? A16 इक्वल टू 73. सो वी कैन राइट A16 मीन्स 16th टर्म मीन्स लिख सकते हैं a प्लस 15d इक्वल टू 73. ये हो गया सेकेंड इक्वेशन. अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके a और d फाइंड कर लेते. ओके, सो subtracting equation 1 and 2. So a plus 10d equal to 38 and a plus 15d equal to 73. So माइनस 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 ये क्या हो गया? कैंसिल. अब यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस 15 माइनस 10 इक्वल टू -5d इक्वल टू, यहाँ देखिए 73 में से 38 माइनस कर दीजिए. 13 8 8 5 13. सो यहाँ 6 माइनस 3 माइनस 35 होगा. यहाँ पे -35 और माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल. तो d इक्वल टू 75/5 5 7 जा 35. तो d इक्वल टू 7. ओके, अब क्या करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1. तो मेरे पास इक्वेशन 1 क्या है? इधर रब कर देते. ओके, सो इक्वेशन 1 वी हैव a प्लस 10d इक्वल टू 38. सो a प्लस d वी हैव 7. 10 इंटू 7 इक्वल टू 38. सो a इक्वल टू 38 माइनस 70 हम कर देते हैं. 10 7 जा 70. सो a इक्वल टू 70 माइनस 38 कीजिए. सो 2 एंड 6 माइनस 3 माइनस 32. सो a मेरे पास आ गया -32. अब हमको क्या फाइंड करना है? 31st टर्म. तो लिख सकते हैं A31 इक्वल टू a प्लस 30d. लिख सकते हैं ना. सो a वी हैव -32 प्लस 30 इंटू d इक्वल टू 7. सो A31 इक्वल टू -32 प्लस 2 7 जा 21 means 210. then A31 equal to 270 minus 32. 10 minus 2 equal to 8 and 10 minus 3 equal to 7. 10 178. So A31 first equal to 178 is answer. Okay,
If you have any doubt, any confusion, please ask me in my comment box from exercise 5.2, question number 4, 5, 6 and 7. Okay, thank you so much.